ناظرین، آج ہم موجود ہیں جناب صلاح الدین شاہ صاحب کے ساتھ، بانی اور پرنسپل مون کریشن اسکولز آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے ان کا ویژن کیا ہے اور ان کا فردر آن فیوچر کے لیے مشن کیا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ 2007 سے مون کریشن اسکول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آغاز اکثر میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے کیسے سٹارٹ کیا، تو میں انہیں کہتا ہوں جی میری مسز جو کہ گرلز کالج میں ہیں تو انہوں نے ایک کمیٹی ڈالی، اس میں ہم نے 8 کمپیوٹر کی لیب سے اور 2 ٹیچرز سے اس کا آغاز کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی ڈیٹ میں 2026 میں اس وقت ہماری 3 برانچز ہیں، 2 ود ان دا سٹی آف مظفر آباد، ایک گڑھی دوبٹہ میں، اور مور دین 560 پلس اسٹوڈنٹس اور 32 کا اسٹاف۔ تو ہمارا مشن، ہمارا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو، ایسے بچوں کو جو موسٹلی میٹرک ایف اے ایف ایس سی کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جن کے لیے یونیورسٹی کی وہ جو ڈگری کا پروگرامز ہیں یا اس کی طرف وہ نہیں جاتے، تو ان کو ساتھ ساتھ انیبل کیا جائے، وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں آئیں، اپنی اسکلز کو پالش کریں اور اپنے لیے بہتر مستقبل کے لیے ارننگ کی طرف جا سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں اور آئی ٹی کی فیلڈ میں تو ریپڈلی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر میں بات کروں 2007 سے جب ہم نے آغاز کیا تھا، تو ایک ٹائم تھا کہ جب ہم کورل ڈرا پہ زیادہ کام فوکس کرتے تھے کہ بچوں کو لوگو ڈیزائن کرنا، پوسٹر ڈیزائننگ کا کام آئے، تاکہ جو ہماری پرنٹنگ کی جو فیلڈ ہے، انڈسٹری ہے، اس کے اندر ان کو لایا جائے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ جب سے ہماری فیلڈ میں آیا، ہمارے پاس اسکوپ آیا، تو اس کی جو ہم نے ٹریننگز آفر کی، تو ہمارے اپنے ہی اسٹوڈنٹس نے ہماری ٹیم کے ساتھ مل کر کے ہمارے کلائنٹس کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ اب پچھلا 20-25 سال میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ 25 سال ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا دور تھا، اور آئندہ 20-25 سال جو ہے، ایک تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اے آئی، سائبر سیکیورٹی، ڈیپ لرننگ اور پلس موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، اس طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی اس بات کا جواب کہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنے آپ کو خود اپڈیٹ نہیں کریں گے، میرے ٹیچرز اپڈیٹ نہیں ہوں گے، ہم اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، ان کو انٹرنیشنل جو اس وقت مارکیٹ ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل نہیں کر پائیں گے۔ مظفر آباد ذات کشمیر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا وسائل کی کمی آڑے آ جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ہمارے ٹیچرس کے لیے بھی، تو ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے الحمدللہ میری اپنا جو ہے پچھلے 20 سال سے لرننگ جو ہے، جتنے بھی آن لائن ہمارے پاس ریسورسز ہیں، لائک یوٹیوب ہے، یا پھر ہمارے پاس فیڈرل منسٹری کی جو ہے ڈی جی اسکلز کا پلیٹ فارم ہے، جہاں سے فری آف کاسٹ بھی ہم کورسز لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خود بھی، میں اپنے ٹیچرز کو بھی، ایون میں سبسکرائب کر کے بھی اپنے ٹیچرز کو انرول کرواتا ہوں ان کورسز کے اندر، جو نئی ورژنز آ رہی ہوتی ہیں، نئے لیٹسٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میرے ٹیچرز نے گوگل کی اسکالرشپس کے اوپر کورسیرا پلیٹ فارم پہ مینجمنٹ کے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اور سائبر سیکیورٹی کے کورسز لرن کیے۔ تو ہمارے ادارے کے مقصد یہی ہے کہ جو چیزیں ہمارے شہر کے اندر، ہمارے کشمیر کے اندر اگر فزیکلی وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو ان کو آن لائن سرچ آؤٹ کیا جائے اور اس کو کنیکٹ کر کے اسٹوڈنٹس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ میرے ادارے کی جو سکسیس ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی سکسیس سٹوریز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لاسٹ 5 to 6 ایئرس کی اگر میں بات کروں، تو چونکہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ایک طرف اسٹوڈنٹ پروگرامنگ اور کوڈنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آفٹر 4 ایئرس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ چیز ڈیولپ کریں، جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے لاسٹ 4-5 ایئرس کے اندر ود ان 2 months سیل فون کے اوپر، جہاں پہ پہلے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے تھے اسکرولنگ سے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، اب ان کو ایک پرپز دیا گیا کہ آپ نے کلائنٹس کے لیے کام کرنا ہے۔ چونکہ ہمارا ادارہ واحد ادارہ ہے جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کو اسکلز پرووائڈ کر رہا ہے، کورسز آفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلائنٹس کے پروجیکٹس کے اندر ہم اپنی ٹیم کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں، تاکہ ان کی وہ ایک لرننگ ہوتی ہے۔ انٹرنشپس ہم آفر کرتے ہیں 3 months 6 months، اور وہی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بچہ ایک ٹریک کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر اپنے لیے وہ کلائنٹ ہنٹ کرتا ہے۔ فائیور پہ، اپ ورک پہ آپ نے فری لانسنگ کی بات کی، اس لیول کو، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے، اس سے پہلے جیسے میں اسٹوڈنٹس کو ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 50 کلائنٹس کا پورٹ فولیو ایک ڈیولپ ہو جائے، آپ اپنا پورٹ فولیو کمپلیٹ کریں، منیمم 50 کلائنٹس کو آپ ڈیل کر چکیں گے تو آپ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے تقریباً 20-25 اسٹوڈنٹس کی اس میں سکسیس سٹوریز ہیں، جس میں سے 2-3 میں اکثر بات کرتا ہوں جی کہ میٹرک والے بچہ جو میرے پاس آیا، اس نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سیکھی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کورسز
कंप्लीट किए, फिर उसने मेरे क्लाइंट्स की 12-13 वेबसाइट्स डेवलप करने के बाद वो इस काबिल हो गया कि अब वो माशाल्लाह इस वक्त हमारे SEO के STP जो ईदगाह मुजफ्फराबाद में मौजूद है, मून क्रिएशंस के ऑफिस में 2 से ढाई लाख रुपया वो अर्न कर रहा है, और अपने साथ उसने 2-3 लोगों की टीम भी रखी है। तो इस तरह की कई एक मिसालें, एक फ़ीमेल हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन काम कर रही हैं, मेरे क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। बिल्कुल उनकी तो ये फील्ड भी नहीं थी, सिंपल FA BA किया हुआ, और उन्होंने जब ये मेरे साथ कोर्सेज़ किए और जब मैंने उनको क्लाइंट्स देना शुरू किए तो माशाल्लाह अच्छा खासा ग्रो कर रही हैं। एक और लास्ट मिसाल है, हमारे यहाँ नादिया समी साहिबा हैं, उनकी पहली बुक शाया हुई है इंग्लिश पोइट्री में, तो उन्होंने पोइट्री के साथ एक इलस्ट्रेशंस अपनी प्रिंट करवानी थी। उसमें हमारे साथ मिस मोमना हैं, उन्होंने AI से बिल्कुल वही चीज़ जो वो चाह रही थी मैडम के मेरे माइंड में है कि इसको एलेबरेट करने के लिए वो इलस्ट्रेशंस चाहिए, वो उन्होंने उनको डेवलप करके दी, और आज उनकी बुक में वो चीज़ शामिल है। ये ना सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए बल्कि अदारे के लिए भी बड़ी प्राउड फीलिंग है कि पब्लिकेशन में भी उनका काम आ रहा है। बीइंग अ बिजनेसमैन मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि चैलेंजेस आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, आपको पुश करने के लिए आते हैं। अगर चैलेंज ना हो, मैं तो वैसे भी स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि कभी मेरे सामने लाइफ में कोई चैलेंज आता है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल का हो या पर्सनल का हो, मैं तो उसको गले लगाता हूँ कि आओ मुझे और एनर्जी मिलेगी काम करने की, आगे बूस्ट करने की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ हमारे साथ हुआ कि लोगों ने मिसगाइड किया लोगों को, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंपेन्स उन्होंने रन की। बहरहाल मैं मेरी टीम हमारी कोशिश होती है कि इग्नोर किया जाए, उन चीज़ों को ना किया जाए। कभी हमारे सामने वसाइल की कमी आ जाती है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारी 4th ब्रांच का काम स्टार्ट हो रहा है, तो हमें तकरीबन 8.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दरकार थी, तो हमने कुछ इन्वेस्टर्स को लाया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट फुलफिल नहीं हो सकी, तो फिर हमने बैंक से लोन भी लिए। अब मतलब एक प्लेटफॉर्म, एक मिशन को लेके चलना है और विद इन द पीरियड ऑफ टाइम उस टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए हम जितना भी वसाइल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से लाया जाए। जब तक मैं खुद, मेरे टीचर्स अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे, वो लोग आगे निकल जाएंगे। डेफिनेटली हमें कम्पीट करना है, मार्केट को देखना है, मार्केट ट्रेंड्स को देखना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, हमारा अपने साथ है कि हमने पिछले दिन से अगले दिन कैसे बेहतर किया। इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने अपने टीचर्स को यहाँ से कराची ट्रेनिंग के लिए भेजा। एक्टेड ने हमारे साथ एक प्रोजेक्ट किया जिसमें उन्होंने मेरे 2 टीचर्स को, सर अली रज़ा मिर्चार और मलिक मुदस्सर, उनको एयर टिकट भी दिया, उनको कंप्लीट फैसिलिटेट किया वहाँ पे उनको, और फिर ट्रेनिंग्स भी उनकी करवाई। स्मेडा की ट्रेनिंग्स के लिए मैं खुद अपनी टीम को मरी तक भी लेके गया हूँ। यहाँ पे भी जब ट्रेनिंग्स आती हैं, ये फिजिकल ट्रेनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन ट्रेनिंग्स के अंदर उन बच्चों को उनकी फील्ड से रेलिवेंट कोर्सेज भी ट्रेनिंग्स टीम को, टीचर्स को करवा रहा होता हूँ। इसके अलावा जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ शायद कि गूगल की स्कॉलरशिप्स, वो हमारे पास 500 स्कॉलरशिप्स अभी लास्ट ईयर हमारे पास थी, तो 374 उसमें से सक्सेसफुल रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स ने कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म पे वो कोर्सेज़ ऑनलाइन सीखे। एक कोर्स की जिसकी कॉस्ट थी 80,000 पाक रुपीज़, जो कि अफोर्डेबल नहीं थी, लेकिन मेरे टीचर्स ने सीखा। सीखने के बाद हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत नॉमिनल फीसिस के अंदर वो कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो सीखने सिखाने का सिलसिला हमेशा जारी है, तो इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोलैबोरेशंस जो हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ सिंस 2002 से ऑनवर्ड चली आ रही है, और अभी हमारा जो 4th ब्रांच है उसमें उनके साथ को वर्किंग स्पेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में 250 ब्रांचेस जो हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की, उनमें से वन ऑफ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में होगी। इसके अलावा 2018 से हम लोग नेवटेक जो मेन अम्ब्रेला है इस तरह के IT टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, जो अथॉरिटी देख रही है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके साथ 2018 से हमारा एफिलिएशन चली आ रही है। इंशाल्लाह इरादा है कि बोल के यूँ कह लीजिए कि जो हम करना चाह रहे थे, बिलीव मी कि आज तक मैं कहता हूँ मैंने 10% भी डिलीवर नहीं किया। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की ज़ात को मंजूर हुआ, जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स हैं इस वक्त, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर डीप लर्निंग में काम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मेरा बस चले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को VR ग्लासेस के ज़रिए जो विजुअल्स है जिसको वो छू सकें, टच कर सकें, 3D प्रिंटर के ज़रिए डिवाइसेस को डेवलप कर सकें। डेवलपर्स की हमें अशद ज़रूरत है, चाहे वो मोबाइल ऐप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, गेम डेवलपर हो। गेम डेवलपमेंट पिछले दिनों मैंने बात की थी कि बहुत
बड़ी 6 अरब रुपए की इंडस्ट्री है जिसमें काम हो रहा है। डेवलपर्स गेम्स डेवलप करते हैं बच्चे और उससे अच्छी खासी अर्निंग की तरफ जा रहे होते हैं। हमने चूँकि गाइडेंस नहीं दी, बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं किया, वो गेम खेलना पसंद करते हैं। डेवलप करने का एक दफ़ा टेस्ट मिल जाए और उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा रिसोर्स बन सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के हवाले से बात करता चलूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस डे फर्स्ट है। जब 2001 में आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट आया तो एक वो टाइम था कि डायल अप के ऊपर हम वेट करते थे आधा घंटा, उसके बाद जा कर के इंटरनेट कनेक्ट होता था। तो आज तो उससे 1000 गुना बेहतरीन आपके पास सर्विसेज हैं। हमारे अपने तमाम ब्रांचेस के अंदर SCO के 50 Mbps 100 Mbps के हम कनेक्शंस दे रहे होते हैं। हमारे सेल फ़ोन के ऊपर बच्चे एसकॉम के ज़रिए सिम्स के ऊपर भी लर्निंग भी कर रहे हैं, चैनल्स को भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारे कोर्सेज ऑनलाइन पढ़े उसको भी देख रहे हैं। नो डाउट बैकबोन है हमारी SCO जो प्रोवाइड कर रही है हमारी तमाम इंटरनेट कनेक्टिविटी को थ्रू आउट द आज़ाद कश्मीर। और फॉर जो हमारे इलाके हैं नीलम में भी, जहलम में भी बच्चे, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हो या स्पेशली इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि SCO के STP ऑफिसेस के अंदर जहाँ पे हमारी टीम भी काम कर रही है, वहाँ पे भी उन स्टूडेंट्स को जिनको इससे पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद जा कर के फ्रीलांसिंग हब्स के अंदर STPs के अंदर जा कर के बैठने में वो फैसिलिटीज़ मिलती थी, SCO ने जब यहाँ पे प्रोवाइड की विद हाई स्पीड इंटरनेट और हाई टेक तमाम सिस्टम के साथ, तो बैकअप के साथ, हर चीज़ के साथ, तो अब वो बच्चे माशाल्लाह पिछले दिनों मैंने सुना कि $20 मिलियन उन्होंने रेवेन्यू जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर लेके आए। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और इसका डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट है हमारी आज़ाद कश्मीर की इकॉनमी के ऊपर, जहाँ पे हमारा अक्सर नौजवानों का होता है, इस चीज़ पे गिला होता है जी कि हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो हकीकत भी अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेट के वसातत से मैं समझता हूँ जो हमारे फ्रीलांसिंग हब्स बने हुए हैं SCO के तावन से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बने हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपनी स्किल्स को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फाइवर, अफर के ऊपर सेल आउट करें और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करें। अपने आप को एम्पावर करें और जितना जल्दी अपने आप को IT की फील्ड, ये एक ऐसी फील्ड है कि इसके लिए आपको क्लाइंट जब पे करने के लिए तैयार होता है तो वो आपसे ना तो एक्सपीरियंस मांगता है ना आपसे डिग्री मांगता है, वो आपका पोर्टफोलियो देखता है। आपकी फील्ड में जिस क्लाइंट को जो डिमांड उसकी होती है वो वेबसाइट को देख रहा है, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसकी, ई-कॉमर्स स्टोर की रिक्वायरमेंट है, वो आपसे कहेगा कि आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। अगर तो आपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ क्लाइंट्स के लिए काम किया और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसको सर्व करेंगे और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मकसद हमारा बच्चों को वो कंप्यूटर की फील्ड को सिर्फ डिप्लोमे की हद तक महदूद ना रखें कि वो 3 मंथ्स 6 मंथ्स कोर्सेज करने के बाद, शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद डिप्लोमा लेंगे और डिप्लोमा लेने के बाद सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब लेंगे। अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, घर बैठ कर के बच्चे प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ से वो ऑनलाइन कुरान की तालीम भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, गेम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और जब से AI इन्वॉल्व हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि जिसके ज़रिए वो चीज़ें भी जो सिर्फ इमेजिन कर सकते थे कि वो इस फील्ड में कर सकते हैं, आज वो अपने हाथों से डिलीवर कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मून क्रिएशन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना सिर्फ नौजवानों को IT की तालीम फराहम कर रहा है बल्कि इन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़कर माशी तौर पर खुद मुख्तार भी बना रहा है। तो अगर आप भी IT की तालीम सीखना चाहते हैं तो आज ही से शुरुआत कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।